Hello everyone, today I welcome you all in this English lecture. Today we are going to start from Unit 3 and we are going to learn the first poem, Night of the Scorpion by Nissim Ezekiel. So let's begin. So first of all, we'll have a small introduction. Nissim Ezekiel, who was born in 1924 and died in 2004, was an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor and art critic. He was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian writings of a wider range. So निसिम एज़िकाइल एक इंडियन जूइश पोएट थे, एक्टर भी थे और एक प्लेराइट एडिटर थे और वे एक फाउंडेशनल फिगर थे इंडिया के हिस्ट्री में और वे इंडियन राइटिंग्स के लिए बहुत जाने माने थे. द पोएम depicts the selfless love of a mother who is stung by a scorpion. तो इस पोएम में यही दर्शाया गया है कि माँ का प्यार कितना निस्वार्थ होता है. I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. Parting with his poison flash of diabolic tail in the dark room, he raised the rain again. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. The poet remembers the night when his mother was stung by a scorpion. It had been raining for 10 hours, and to escape the rain, the scorpion had crawled beneath a sack of rice. He had bitten the poet's mother, and after parting with his poison in the dark room, had gone back into the rain with a devilish flash of his tail. On hearing the news, the villagers had come like swarm of flies, chanting the name of God 100 times to stop the activity of the devil, the scorpion. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि पोएट को वो रात याद है जब उनके माँ को एक स्कॉर्पियन ने काटा था. स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू. तब भी कंटिन्यूसली 10 घंटे बारिश हो चुकी थी और बारिश से बचने के लिए स्कॉर्पियन था मतलब जो बिच्छू था वो चावल के बोरी में छिप के बैठा हुआ था. उस स्कॉर्पियन ने पोएट की माँ को काटा था और पॉइजन फैला रहा था एंड पॉइजन फैलाने के बाद वो फिर से बारिश में चला गया. ये खबर सुन के सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए और भगवान का नाम लेने लगे. वो भगवान का नाम इसीलिए ले रहे थे क्योंकि उनको उस स्कॉर्पियन के चाल चलन को रोकना था. विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every moment that the scorpion made his poison moved in mother's blood. They said they had searched for the scorpion with candles and lanterns, throwing huge shadows resembling scorpions on the mud walls of the house. They searched for him but did not find him. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो गांव वाले थे उन्होंने बहुत ढूंढा उस स्कॉर्पियन को. और कैसे ढूंढा? बहुत सारे कैंडल्स और लैंटर्न्स लेके, बिकॉज बहुत अंधेरा था वो रूम में. ठीक है. और फिर उन्होंने जो वॉल्स थे, मडी वॉल्स थे हाउस के, वहाँ पे भी ढूंढा पर इतना ढूंढने के बावजूद भी उन्हें वो स्कॉर्पियन नहीं मिला. दे क्लिक देयर टंग्स टू शो देयर फ्रस्ट्रेशन एंड सॉरो. दे सेड दैट विथ एवरी मोमेंट द स्कॉर्पियन मेड द पॉइजन मूव्ड इन द पोएट्स मदर्स ब्लड. तो उन्होंने उनका जो टंग था वो भी बाहर निकलना शुरू किया बिकॉज वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे और उनका ऐसे मानना था कि हर एक मूवमेंट के मतलब स्कॉर्पियन के हर एक मूवमेंट से जो पॉइजन है उस पोएट के मदर के भीतर, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ऐसे उनका मानना था. तो इसलिए उस स्कॉर्पियन को ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. May he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in the unreal world
against the sum of good become diminished by your pain. They hoped that the scorpion would sit still. They hoped that the sins of the previous birth would be burned away that night. They prayed that the present suffering would decrease any misfortunes in her next birth. They hoped that the balance of the sum of all the evil in this world against the sum of good would be diminished by her pain. तो यहाँ पे क्या बताया गया है, गांव के लोग प्रे कर रहे थे कि वो बिच्छू एक ही जगह पे रहे और ज़्यादा उधर इधर ना फैले. विलेजर्स प्रे कर रहे थे कि पोएट की माँ के पिछले जन्म के सारे पाप माफ़ हो जाए. दे वर प्रेइंग कि पोएट की माँ के जो सफरिंग्स है जो अगले जन्म में भी कोई भी दुर्भाग्य को कम करे. वो लोग प्रे कर रहे थे कि पोएट की माँ ने जो अच्छे काम किए हैं ये जन्म में वो उनके सारे बुरे काम को बैलेंस करे, उनके दर्द के साथ गायब हो जाए. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said, and they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. They prayed that the poison would purify her flesh of any desire and the spirit of any ambition. तो उन्होंने यही प्रे किया, वो जो पॉइजन फैल रहा था वो सारे फ्लैश को प्यूरिफाई करे, उनके जो भी डिजायर है और एम्बिशन है उनको भी प्यूरिफाई करे. They sat round the floor with the mother in the center and there was the peace of understanding on every face. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि उनके माँ को बीच में बिठाया गया और सारे जो लोग थे, जो नेबर्स थे, वो पूरा उनको सराउंड करके बैठ गए और उनके फेस पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही था. मोर नेबर्स केम इन टू हेल्प विथ मोर कैंडल्स एंड मोर लैंटर्न्स. देयर वर मोर इंसेक्ट्स एंड द रेड कंटिन्यूड एंडलेसली. तो अभी बहुत सारे नेबर्स भी आ गए, जैसे जैसे बारिश बढ़ रही थी वैसे वैसे नेबर्स आ रहे थे और बहुत सारे कैंडल्स भी वो लोग ला रहे थे, लैंटर्न्स ला रहे थे. वो स्कॉर्पियन को ढूंढना था उन्हें एंड ये सब देख के बहुत सारे इंसेक्ट्स भी आ रहे थे. बट बारिश कुछ रुकी नहीं, बारिश कंटिन्यूसली गिर रही थी. द पोएट्स मदर एंटायर बॉडी ट्विस्टेड एंड टर्न एंड शी ले ग्रोनिंग ऑन द मैट. तो अभी जो पोएट की मदर की बॉडी थी वो अभी ट्विस्ट एंड टर्न करने लगी बिकॉज उनको पेन हो रहा था और वो जो मदर है वो मैट पे ग्रोन कर रही थी, उनको बहुत दर्द हो रहा था. माई फादर skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. My mother only said, "Thank God the scorpion picked on me and spared my children." The poet's father was a rationalist, a person who believed in reason and knowledge and doubted all things. However, at this time, he tried every curse and blessing. He also tried powders, mixtures, herbs, and hybrids. He poured a little paraffin on the biting toe and lit it with a matchstick. The flame grew bigger and bigger. A holy man performed rites to make the effect of the poison lesser. With a magical chant, after 20 hours, it lost its sting. The poet's mother, at the end, only thanked God that the scorpion had chosen to bite her and spared her children. तो अभी यहाँ पे क्या बताया गया है, पोएट के फादर एक रेशनलिस्ट थे, मतलब एक ऐसे इंसान थे जो कारण और ज्ञान में विश्वास रखते थे. पर इस बार उन्होंने भी सारे नुस्खे आजमा के देखे. उन्होंने सारे पाउडर्स के मिश्रण, सारे जड़ी बूटी और अलग अलग नुस्खे करने की कोशिश की. उन्होंने थोड़ा सा तेल, मतलब जो पैराफिन है, वो उस चोट पे डाला और मैचस्टिक से वो लाइट करने लगे. और लाइट करने के बाद वो जो लाइट थी, मतलब फ्लेम थी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी. फिर एक होली मैन आता है, मतलब एक पवित्र आदमी आके सारे अपने तंत्र मंत्र बोलता है
और 20 घंटे के बाद फाइनली जो डंक था वो खोने लगता है। फिर लास्ट में जब पोएट की माँ बोलने लगी तब उन्होंने यही बोला कि भगवान की वही शुक्रगुजार है कि उस स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा और उनके बच्चों को नहीं। So what can be the conclusion? The poem Night of the Scorpion presents a rural Indian village and its people, throwing light on the superstitions, temperament and outlook on life which were prevalent in the poet's time. तो अभी ये पोएम में क्या बताया गया है कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने सारे सुपरस्टिशंस है, फिर जो टेम्परामेंट्स है उनके बारे में बताया गया है कि कभी कभी वो भी सच होते हैं। ऐसे नहीं कि हर बात एक रेशनलिस्ट ही होना पड़ता है, कभी कभी जो सुपरस्टिशंस है वो भी काम में आते हैं। नेवरदलेस द पोएम शोज द कंसर्न एंड यूनिटी ऑफ द विलेज पीपल। तो इस पोएम में अभी यही जानने को मिलता है कि जो गांव के लोग हैं वो कितने मददगार होते हैं, मतलब कुछ भी सिचुएशन हो वो मदद के लिए हमेशा आते हैं। Therefore, Night of the Scorpion is not only a depiction of an incident in the life of the poet's mother, but also an overall portrayal of rural India. तो उन्होंने फाइनली क्या कंक्लूड किया है कि ये पोएम सिर्फ एक इंसिडेंट पे आधारित नहीं है, बट ये पोएम हमें रूरल इंडिया की भी पहचान देता है। मतलब गांव के लोग कितने मददगार होते हैं, चाहे कुछ भी हो, कितना भी भारी संकट आए तब भी वो कैसे हमारी मदद करने आते हैं, यही हमें इस पोएम में बताया गया है। So we'll start with the vocabulary now. Diabolic is wicked or having a quality of a devil. मतलब डेविल के जो क्वालिटीज़ होते हैं उसे हम लोग डायबोलिक कहते हैं। Peasants are villagers मतलब गांव वाले। Paralyze something is to stop the activity of something मतलब किसी भी चीज़ की एक्टिविटी स्टॉप कर देना, उसे paralyze something कहते हैं। Clicked their tongues मतलब made a noise with their tongues to indicate frustration, sorrow, sympathy मतलब हम लोग के टंग से आवाज़ निकलते हैं ना, मतलब जब हम लोग फ्रस्ट्रेट रहते हैं, बहुत ही गुस्से में रहते हैं, तो उसे हम लोग क्लिक बाय टंग्स कहते हैं। डिमिनिश इज लेसेंड और रिड्यूस मतलब रिड्यूस करना, कम करना, उसे हम लोग डिमिनिश कहते हैं। ग्रोन इज़ अ पेनफुल साउंड मेड इन पेन और ग्रीफ मतलब यदि हमें बहुत दर्द हो रहा है तो हम लोग एक पेनफुल साउंड निकलते हैं, तो उसे हम लोग ग्रोन कहते हैं। स्केप्टिक इज अ पर्सन हु डाउट्स इन द ट्रूथ और वैल्यू ऑफ एन आइडिया और बिलीफ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी ट्रूथ पे डाउट करता है, मतलब बिलीव नहीं करता, उसे स्केप्टिक कहते हैं। रेशनलिस्ट इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन रीजन एंड नॉलेज रादर देन ओपिनियंस एंड बिलीव मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नॉलेज में बिलीव करता है रादर देन किसी के ओपिनियंस और बिलीव्स पे। पैराफिन इज अ फ्लेमेबल वैक्सी मटेरियल। राइट्स आर रिचुअल्स मतलब हम लोग के जो रिचुअल्स रहते हैं उसे हम लोग राइट्स कहते हैं, मतलब हमारी रस्म रिवाज। देन इनकेंटेशन इज द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स विच क्लेम टू हैव मैजिकल पावर्स मतलब ऐसे तंत्र मंत्र रहते हैं ना, उसे हम लोग इनकेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। फर्स्ट इज द टाइटल ऑफ द पोएम। टाइटल ऑफ द पोएम क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। देन हु इज द पोएट? पोएट कौन है? निसिम आइजिकाइल। थीम या सेंट्रल आइडिया क्या है पोएम की? द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेसनेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर हु इज स्टंग बाय स्कॉर्पियन। तो इस पोएम में हमें क्या बताया गया है कि जो माँ का प्यार है वो कितना निस्वार्थ रहता है और कितना अनकंडीशनली माँ एक बेटे से प्यार करती है। राइम स्कीम रिटन इन फ्री वर्स विदाउट एनी राइम स्कीम और मैटर। तो यहाँ पे क्या बताया कि ये जो पोएम है वो फ्री वर्स में है और इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ओनोमोटोपिया। वाई? बिकॉज इट इज़ बज्ड बाय द नेम ऑफ अ गॉड 100 टाइम्स मतलब 100 बार ऑलमोस्ट भगवान का नाम लिया गया है, इसलिए ओनोमोटोपिया। स्पेशल फीचर्स क्या है पोएम के? इट इज़ अ नरेटिव पोएम। द स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम इज द इमेजरी। वी गेट अ क्लियर एंड विविड पिक्चर ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द हाउस। तो क्या है स्पेशल फीचर? कि एक पोएम है जो इमेजरी है, मतलब क्लियर पिक्चर हमें मिलता है कि एक्चुअली क्या हो रहा था उस घर में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिए गए हैं। इन द एंड द पोएट डिपिक्ट्स द सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर हु इवन व्हेन शी इज़ इन इंटेंस पेन फर्स्ट थिंग्स ऑफ अ चाइल्ड। तो जो पोएट है उन्होंने लास्ट में क्या कहा है कि माँ अपने बेटे के प्रति कितना प्यार करती है, कितना सेल्फलेस लव होता है एक माँ का,
एंड फाइनली क्या बताया गया है कि इतना सारा पेन होने के बावजूद भी माँ अपने बेटे के बारे में ही सोचती है. फेवरेट लाइन, थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन. देन वाई डू आई लाइक दिस पोएम? आई लाइक दिस पोएम बिकॉज ऑफ द इमेजरी एंड सेंसिटिव एंडिंग. तो ये पोएम मुझे क्यों अच्छी लगती है? बिकॉज एक अच्छा पिक्चर दिया है उस पोएम में और एक बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया है और उसकी एंडिंग भी बहुत ही सेंसिटिव है. नेक्स्ट पार्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग. द स्कॉर्पियन वॉज फोर्स्ड टू टेक शेल्टर इन द पोएट्स हाउस. स्कॉर्पियन ने शेल्टर क्यों लिया था पोएट के हाउस में? टू एस्केप द हेवी रेन, बिकॉज बाहर बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी तो वो बचना चाहता था उस बारिश से, इसलिए. इन द लाइन नंबर 3 द वर्ड हिम रिफर्स टू. तो जो थर्ड लाइन है उसमें हिम किसको रिफर करते हैं? टू द स्कॉर्पियन, वो स्कॉर्पियन को. टू पैरालाइज द इविल वन इन स्टैंजा 3 मीन्स. तो जो थर्ड स्टैंजा में पैरालाइज द इविल वन है उसका मतलब क्या है? टू स्टॉप द एक्टिविटी ऑफ द डेविल द स्कॉर्पियन. मतलब जो एक्टिविटी है डेविल का वो स्टॉप करने के लिए. और वो डेविल कौन है? द स्कॉर्पियन है, मतलब वो बिच्छू है. दे इन स्टैंजा 4 रिफर्स. स्टैंजा 4 में जो दे है वो किसको रिफर करते हैं? टू द पीजेंट्स हु हैड कम टू हेल्प. मतलब जो गांव वाले हैं वो हेल्प के लिए आए थे उनको रिफर करते हैं. द मदर फाउंड रिलीफ. मदर को रिलीफ कभी मिला? आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद. ऑल थ्रू द ऑडियल द पोएट्स मदर. अभी ये सब जो हो रहा था तब पोएट की मदर है वो क्या हुआ? ट्विस्टेड एंड ग्रोन्ड इन पेन. मतलब उन्हें बहुत सारा पेन हो रहा था, बहुत दर्द हो रहा था और वो ट्विस्ट कर रही थी मैट पे. द पीजेंट्स कंसोल्ड द मदर सेइंग द पॉइजन विल बर्न अवे द सिंस ऑफ अ प्रीवियस बर्थ. मतलब जो पॉइजन है वो बर्न करेगा उनके जो सिंस थे प्रीवियस बर्थ को, उन्हें. हर सफरिंग विल डिक्रीज. क्यों सफरिंग डिक्रीज होगी? बिकॉज ऑफ द मिसफॉर्चून्स ऑफ द नेक्स्ट बर्थ. मतलब नेक्स्ट बर्थ के जो मिसफॉर्चून्स थे उनके वजह से. द इविल इन दिस वर्ल्ड विल बी. और जो इस वर्ल्ड में इविल है वो क्या हो गए? डिमिनिश हो गए बाय आवर पेन, मतलब चले जाएंगे. द पॉइजन विल प्योरीफाई. जो पॉइजन है वो क्या प्योरीफाई करेगा? फ्लैश ऑफ डिज़ायर एंड द स्पिरिट ऑफ एम्बिशन. उनका जो डिज़ायर का फ्लैश है वो और जो एम्बिशन का स्पिरिट है वो पूरी तरह प्योरीफाई करेगा. नेक्स्ट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज सिमिली. अभी सिमिली क्यों है? बिकॉज हियर द पीजेंट्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली टू स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. यहाँ पे जो पीजेंट्स है उनका कंपैरिजन किया है किससे? जो फ्लाइज है उनसे. और कौन सा वर्ड यूज किया है? लाइक, इसलिए सिमिली. टू पैरालाइज द इविल वन. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. व्हाई? बिकॉज द स्कॉर्पियन इज इम्प्लिकली कंपेयर्ड टू द डेविल. तो जो स्कॉर्पियन है वो इम्प्लिकली कंपेयर किया है डेविल को, इसलिए मेटाफर है ये. एंड बस्ट द नेम ऑफ गॉड. सो दिस इज ओनोमोटोपिया बिकॉज द वर्ड बस्ट इंडिकेट साउंड. ओके, जो वर्ड है बस्ट वो एक साउंड इंडिकेट करता है, इसलिए ये ओनोमोटोपिया है. दे क्लिक देयर टंग्स. ओनोमोटोपिया बिकॉज द वर्ड क्लिक्ड इंडिकेट साउंड. बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड है क्लिक्ड वो भी साउंड इंडिकेट करता है, इसलिए ये भी ओनोमोटोपिया है. पार्टिंग विद द पॉइजन फ्लैश. सो दिस इज एलिट्रेशन. अभी एलिट्रेशन क्यों है? बिकॉज जो पी है उसका रेपिटेशन हुआ है, इसलिए एलिट्रेशन है ये. ऑफ डायबोलिक टेल इन द डार्क रूम. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन अगेन बिकॉज डी का रिपीटेशन हुआ है बार बार, इसलिए. थ्रोइंग जाइंट स्कॉर्पियन शैडोज. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन बिकॉज रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर एस. अभी एस जो लेटर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये भी एलिट्रेशन है. दे सर्च फॉर हिम, ही वॉज नॉट फाउंड. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एंटीथेसिस बिकॉज वर्ड्स हैविंग अपोजिट मीनिंग्स आर यूज्ड इन द सेम लाइन. अभी ये लाइन में दो ऐसे वर्ड्स यूज किए गए उनका अपोजिट मीनिंग है, इसलिए एंटीथेसिस है. मे ही सिट स्टिल दे सेड. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज एलिट्रेशन बिकॉज repetition of the word s. May the poison purify your flesh. So this is also alliteration because जो p है उसका साउंड रिपीट किया गया है बार बार, इसलिए. May the sum of all the evil balanced in this unreal world against the sum of good. So this figure of speech is antithesis because words having opposite or contradictory meanings are used. तो ये figure of speech antithesis है because अपोजिट मीनिंग्स यूज किए गए हैं एक ही सेंटेंस में.
मोर कैंडल्स, मोर लैंटर्न्स, मोर नेबर्स. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज रेपिटेशन. अभी रेपिटेशन क्यों है? बिकॉज यहाँ पे जो वर्ड है मोर वो बार बार रिपीट किया है. तो याद रखो, जब भी वर्ड रिपीट होता है तब वो रेपिटेशन होता है, और जब एक लेटर रिपीट होता है तब एलिट्रेशन होता है. ग्रोनिंग ऑन अ मैट. सो दिस फिगर ऑफ स्पीच इज ओनोमोटोपिया. व्हाई? बिकॉज ग्रोनिंग इंडिकेट्स साउंड. पाउडर, मिक्सचर, herb and hybrid. So this is alliteration. Why? Because the sound of the letter H is repeated again and again. He even poured a little paraffin. So this is also alliteration because sound of letter P is repeated again and again. Next is answer the following questions. Explain why the poem begins with the poet remembering the night. The poem begins with the poet remembering the night because the whole incident that is narrated in the poem took place in the night. So यहाँ पे क्या पूछा है कि why is the poet remembering that particular night and why is he beginning with that night. So easy answer है इसका, because ये जो सब incident था वो रात को हुआ था. That took place in the night. That is why he is beginning with that particular night. Who? The poet. What forced the scorpion take shelter in the poet's house. Scorpion को ऐसा क्यों लगा कि वो पोएट के घर में शेल्टर लेना चाहिए? Because it was a very रेनी नाइट एंड वाटर स्ट्रीम डाउन द स्कॉर्पियंस होल. तो उस रात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और जो पानी था वो स्कॉर्पियन के होल में जा रहा था. हैविंग बीन फोर्स्ड टू अबंडन इट्स फ्लडेड होल, द स्कॉर्पियन विदाउट एनी इंटेंशन टू स्टिंग एनीवन केम टू द पोएट्स हाउस फॉर शेल्टर एंड वार्मथ. तो वो पानी बहुत ही ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा था और जो स्कॉर्पियन था उसे कुछ भी करके बचना था. तो इसलिए उसने अच्छे इंटेंशन से ही पोएट के घर में जाने का फैसला किया. वाई? बिकॉज ही वॉन्टेड शेल्टर. उसे रहने के लिए घर चाहिए था और थोड़ा वार्म चाहिए था. वार्म मतलब थोड़ा गर्माहट चाहिए थी, और उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो किसी को भी चोट पहुंचाए. अंडर वॉट सर्कमस्टेंसेज डिड द स्कॉर्पियन स्टिंग द पोएट्स मदर. कौन से सर्कमस्टेंसेज के अंडर जो स्कॉर्पियन है मतलब बिच्छू है उसने उस मदर पोएट के मदर को स्टिंग किया. The scorpion had no intention to sting the poet's mother. So what happened was accidental and unintentional. तो स्कॉर्पियन का कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उस पोएट की मदर को काटे. जो भी कुछ हुआ वो एक्सीडेंटल था और अनइंटेंशनल था, मतलब जानबूझ के नहीं किया था उस बिच्छू ने. It was probably the poet's mother who walked over the scorpion in the dark kitchen and hurt it, and the scorpion's reaction was quite natural. तो क्या हुआ था, बहुत अंधेरा था और उस अंधेरे में जो पोएट की मदर है उन्हें कुछ दिखा नहीं, और पोएट के मदर ने स्कॉर्पियन में से वॉक किया था, मतलब उसके ऊपर से वो चली थी. और बट ऑब्वियस है अगर उसके ऊपर से वो चली तो वो स्कॉर्पियन को भी हर्ट हुआ होगा, जो बिच्छू है उसे बहुत हर्ट हुआ होगा, और वो बिच्छू ने एक सडन रिएक्शन दिया. और वो रिएक्शन मतलब क्या था, उस बिच्छू ने उन्हें काटा. तो इसमें स्कॉर्पियन की भी कुछ गलती नहीं थी, बिकॉज उसको भी बहुत हर्ट हो चुका था. How did the scorpion part with his poison? The scorpion parted with its poison by stinging the toe of the poet's mother, thus injecting its poison into her veins. तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्कॉर्पियन ने पॉइजन कैसे डाला उस मदर के बॉडी में. तो उसने स्टिंग किया मदर के टो को और ऐसे ही इंजेक्ट हुआ, और जो पॉइजन था वो मदर के टो के वेन्स में गया. नेक्स्ट इज वाई आर द पीजेंट्स कंपेयर टू स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज. तो यहाँ पे पोएट ने पीजेंट्स को स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज से क्यों कंपेयर किया है? द कंपेरिजन इज द पोएट्स एक्सप्रेशन ऑफ डिसकंटेंट विद द पीजेंट्स. तो ये जो कंपेरिजन है वो पोएट के प्रति गुस्सा है पीजेंट्स के प्रति. ही हेटेड देम बिकॉज दे मेड द नाइट अ हेल्प फॉर हिम, हिज फादर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फॉर हिज मदर. तो वो पीजेंट्स को क्यों हेट करता था? बिकॉज उसे ऐसे लगता था कि वो जो रात बिगड़ी है वो सिर्फ वो पीजेंट्स के वजह से बिगड़ी है, और वो पीजेंट्स के वजह से उसे, उसके फादर को एंड सबसे ज़्यादा उसके मदर को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है. नेक्स्ट, हु इज़ द इविल वन हियर? वाई इज़ इट इविल? तो यहाँ पे जो इविल वन कहा है वो किसे कहा गया है और क्यों? द इविल वन इज़ द स्कॉर्पियन दैट स्टंग द पोएट्स मदर. It is considered evil because the people associated the sting of scorpions with that of the evil power. तो यहाँ पे जो evil one है वो स्कॉर्पियो के बताया गया है, एंड वो स्कॉर्पियन को
क्यों कंसिडर करते हैं इविल? क्योंकि जो स्कॉर्पियन ने हमला किया था उसके मदर को, वो कैसे किया था? इट वॉज विद दैट इविल पावर, उसकी जो इविल पावर थी उससे उसने हमला किया था। इविल मतलब क्या? बुराई करना। देन नेक्स्ट, व्हाई इज द पीजेंट्स प्रेयर्स साउंड लाइक बजिंग इन द पोएट्स ईयर्स? तो जो पीजेंट्स के प्रेयर्स थे वो बजिंग क्यों साउंड कर रहे थे पोएट के ईयर्स में? दो द पीजेंट्स मेंट गुड एंड स्वॉर्म्ड अराउंड द पोएट्स हाउस टू हेल्प द फैमिली एंड द विक्टिम ऑफ द स्टिंग, देयर एक्शंस एंड इंटेंशंस ब्रॉट एंडलेस पेन टू द पोएट्स मदर। तो यहाँ पे पोएट का क्या मानना था कि भले ही वो जो पीजेंट्स थे वो मदद कर रहे थे, बट उनके जो हरकतें थे, उनके जो एक्शंस थे और उनके जो इंटेंशंस थे वो बहुत ज़्यादा पेन ला रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द ला रहा था पोएट के माँ को। तो इसीलिए जो पोएट थे वो पीजेंट्स को बहुत हेट करता था, बिकॉज उसे ऐसे ही लगता था कि वो पीजेंट्स बहुत सारा दर्द दे रहे उसके माँ को। इन वॉट सेंस डू यू थिंक वर द नेबर्स वर्चुअस और गुड? तो यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन से सेंस में आपको लग रहा था कि जो नेबर्स थे वो अच्छे थे या वर्चुअस थे? द नेबर्स वर एसेंशियली गुड एंड वर्चुअस। दे आर रनिंग इन टू द पोएट्स हाउस फॉर हेल्प इन अ रेनी नाइट वॉज मोर देन जस्ट हेल्पिंग एंड केयरिंग। तो यहाँ पे क्या कहा है कि वो जो नेबर्स थे वो बहुत ही केयरिंग थे और वर्चुअस थे और बहुत ही अच्छे भी थे। क्यों? बिकॉज इतने रात को इतने जोर की बारिश हो रही थी, फिर भी वो दौड़ के आए उनके हेल्प करने के लिए, और वो बहुत ही केयरिंग और हेल्पिंग भी थे। देयर अटेम्प्ट्स टू फाइंड एंड किल द स्कॉर्पियन वॉज अनदर कॉम्प्लीमेंटिंग एग्जाम्पल, दो द सिविलाइज माइंड कांट फाइंड इट सेंसिबल। तो उनके जो अटेम्प्ट्स थे वो स्कॉर्पियन को मारने के लिए, वो भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि वो कितना केयर करते थे उसका। Why did it appear to the neighbors that they should get the scorpion? The neighbors were of the belief that they could stop the poison that flowed to the victim's brain by stopping their perpetrator, the scorpion. तो अभी क्या कहा है कि जो नेबर्स थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि जो स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है वो फैल रहा है वो आराम से स्टॉप कर सकते हैं, इसीलिए वो वहाँ पे आ चुके थे, मतलब अपीयर हो चुके थे। Why did the peasants want the scorpion sit still? अभी peasants को ऐसा क्यों लगता था कि स्कॉर्पियन एक ही जगह पे रहे? The peasants believed that the poison in the mother's blood moved swiftly as the scorpion moved. They therefore wanted the scorpion to sit still. तो अभी peasants का क्या मानना था कि अगर स्कॉर्पियन मूव हुआ तो वो मदर के अंदर जो पॉइजन है वो भी धीरे धीरे फैलेगा, इसलिए peasants को यही लगता था कि स्कॉर्पियन जहाँ भी हो वो स्टिल रहे, मतलब एक ही जगह पे रहे। बिकॉज अगर स्कॉर्पियन ने मूव किया तो वो जो पॉइजन है वो भी मूव करेगा, मतलब फैलेगा। थ्रू आउट द पोएम द स्कॉर्पियन इज एड्रेस्ड ही। व्हाट सेंस डज दिस पर्सोनिफिकेशन मेक? तो यहाँ पे क्या कहा है, पूरे पोएम में स्कॉर्पियन को कैसे एड्रेस किया है? ही जैसे। तो ऐसे क्या सेंस है कि पर्सोनिफिकेशन हुआ है? दिस इंडिकेट्स द विलेजर्स सुपरस्टिशन। तो यहाँ पे क्या कहा है कि इसे इंडिकेशन मिलते हैं कि जो गांव वाले हैं वो कितने सुपरस्टिशियस है, मतलब अंधश्रद्धा में कितना बिलीव करते हैं। दीज पीपल वर ऑफ द ओपिनियन दैट अ पॉइजनस स्कॉर्पियन दैट डेयर्स टू स्टिंग अ वुमन इन द डार्कनेस could only be the devil in disguise, and devils were considered more close to humans or at least possessing human characteristics. तो उनका यही मानना था कि इतने रात को इतनी जोर की बारिश में भी एक स्कॉर्पियन ने, मतलब एक बिच्छू ने एक औरत को स्टिंग किया था, उतना हिम्मत था उसमें, तो वो एक डेविल ही था। और डेविल कौन होते हैं? जो ह्यूमन बींग्स को तकलीफ देते हैं, ठीक है, और जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को चोट पहुंचाते हैं। इसलिए पूरे पोएम में वो जो बिच्छू था उसे कैसे एड्रेस किया है? ही। देन नेक्स्ट इज हाउ फार वॉज द पोएट्स फादर डिफरेंट फ्रॉम अदर पीजेंट्स? तो अदर पीजेंट्स से पोएट के फादर कैसे डिफरेंट थे? द पोएट्स फादर वॉज नॉट द लीस्ट सुपरस्टिशियस एज द अदर पीजेंट्स. ही वॉज अ मैन ऑफ रीजन एज अ प्योर स्केप्टिक. ही रीजन फर्स्ट एंड द सस्पेक्टिक रिलीजन एंड फेथ्स. तो यहाँ पे क्या कहा है कि जो पोएट के फादर थे वो लीस्ट सुपरस्टिशियस थे, मतलब वो अंधश्रद्धा में बिलीव ही नहीं करते थे. क्यों? बिकॉज वे एक रेशनलिस्ट थे, एक प्योर स्केप्टिक थे. वो किस में बिलीव करते थे? नॉलेज में बिलीव करते थे, और बाद में सभी चीज़ों को. ट्राइंग एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग एक्सप्लेन.
हियर कर्स रिफर्स टू प्रीस्ट चैंटिंग ऑफ मंत्रास। तो यहाँ पे कर्स किसे कहा गया है? जो प्रीस्ट लोग, मतलब जो फादर्स है वो मंत्र चैंट करते हैं ना, कोई भी तंत्र मंत्र जो चैंट करते हैं उसे यहाँ पे कर्स कहा गया है। वाइल ब्लेसिंग रिफर टू द यूज ऑफ मेडिसिन, और ब्लेसिंग मतलब जो मेडिसिन का यूज होता है और जो मेडिसिनल हाइब्रिड्स है जैसे पैराफिन, तो उसे ब्लेसिंग कहा गया है। वॉट डिड द पोएट्स फादर डू फॉर हिज वाइफ? जो पोएट के फादर थे उन्होंने क्या किया उनके वाइफ के लिए? द पोएट्स फादर वॉज रिजॉर्टिंग टू एवरी पॉसिबल सेंसिबल वेज टू क्योर हिज वाइफ। तो जो पोएट के फादर थे वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि उनकी वाइफ जल्दी ठीक हो जाए, तो वो अलग अलग वेज ढूंढ रहे थे उसके लिए। While the villagers went on searching the scorpion and the priest chanted mantras, the man of reason made use of herbs and hybrid medicines. तो जो villagers थे वो स्कॉर्पियन को ढूंढ रहे थे और जो प्रीस्ट थे वो मंत्रास पढ़ रहे थे, और तभी जो पोएट के फादर थे वो क्या कर रहे थे? वो हर्ब्स बना रहे थे, मतलब जड़ी बूटी बनाते हैं ना, और जो हाइब्रिड मेडिसिन है वो तैयार कर रहे थे। हाउ वॉज द मदर फाइनली क्योर्ड? डू यू थिंक इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ प्रेयर्स एंड इनकैंटिनेशंस? एक्सप्लेन। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि जो पोएट की मदर है वो फाइनली कैसे क्योर हुई, कैसे ठीक हुई, और आपको क्या लगता है वो कैसे ठीक हुई? प्रेयर्स से ठीक हुई या इनकैंटिनेशन से? एक्सप्लेन कीजिए। द मदर वॉज फाइनली क्योर्ड व्हेन द पॉइजन गॉट डिजॉल्व इन हर ब्लड। तो मदर कैसे क्योर हो गई? जब वो पॉइजन था वो फाइनली डिजॉल्व हुआ उनके ब्लड में, वैसे वो ठीक हो गए। नो इट वॉज नॉट। तो ये प्रेयर्स का रिजल्ट नहीं था या इनकैंटिनेशन का रिजल्ट नहीं था। इट वॉज क्वाइट अ नेचुरल प्रोसेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस था। If the prayers had been heard and incantations had any powers, she should have not suffered for such a long time like 20 years. तो अभी यहाँ पे क्या कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये सब प्रेयर्स या इनकैंटिनेशन से वजह से हुआ है, तो पोएट ने इधर साफ साफ बताया कि ऐसे कुछ नहीं है। क्यों? बिकॉज अगर ऐसे होता तो वो 20 घंटों के लिए इतना सफ़र नहीं करती, प्रेयर्स से बहुत जल्दी वो ठीक हो जाती। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस था, ऐसे उनका मानना है। So this is the end of the poem. We'll meet on to the next lecture. Thank you.